کسی نے اچھا ایسے لکھا، کسی نے اچھی لائن لکھی، کسی نے اچھا پیراگراف لکھا، کسی نے اچھا شعر سنایا، کسی نے اچھی نعت پڑھی، کسی نے اچھا ملی نغمہ سنایا، کسی نے اچھی تقریر کی، کسی نے اچھی بات کی، کسی نے اچھے ایٹیکیٹس دکھائے، کسی نے اچھے رویے سے آپ کے ساتھ بات کی، کسی نے اچھی نشست و برخاست کا مظاہرہ کیا، کسی نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کوئی ٹائم پر آتا ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر آپ ان کو اپریشیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو بی این افیکٹو ٹیچر، کہ کلاس کا پسندیدہ ٹیچر کیسے بنا جائے۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی استاد جب تک کہ وہ کلاس کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا پسندیدہ ٹیچر نہیں بن جاتا، وہ صحیح طرح سے پڑھا نہیں سکتا۔ یعنی اسے پہلے کلاس کا پسندیدہ فیوریٹ ٹیچر بننا پڑے گا۔ جب وہ اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا پڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کلاس کا پسندیدہ استاد نہیں ہے، کلاس یا شاگرد، طلبہ اس کے آنے پہ اداس ہو جاتے ہیں، تو سمجھیں وہ کلاس کا پسندیدہ استاد نہیں ہے۔ کلاس کا پسندیدہ استاد کون ہو سکتا ہے؟ طلبہ کا پسندیدہ استاد کون ہو سکتا ہے؟ وہ استاد کہ جس کے آنے پر بچے خوش ہو جائیں، وہ استاد جس کے آنے کا بچے، طلبہ انتظار کریں، کوشش کریں یہ کبھی ختم نہ ہو۔ ہمارا استاد ہمیں پڑھاتا رہے اور ہم پڑھتے رہیں، وہ بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں، وہ سمجھاتا رہے اور ہم سمجھتے رہیں۔ ایسا استاد کہ جس کو باہر گیلریوں میں، راہداریوں میں بھی بچے ملیں تو اسے وہ کہیں کہ سر ہماری کلاس میں آ جائیں۔ ایسا استاد کہ جس سے بچے مل کے خوش ہوں۔ ایسا استاد کہ جس سے بچے مصافحہ کرنے کو اپنا اعزاز سمجھیں۔ ایسا استاد کہ جو اس کو دور سے بھی بچے دیکھیں تو اس کی طرف دوڑے چلے آئیں، اس کی طرف بھاگے چلے جائیں اور اس سے مصافحہ کریں، اس سے بات چیت کریں، اس کی حال چال دریافت کریں۔ یہ استاد سمجھیں اپنے طلبہ کا فیوریٹ استاد ہے۔ یہ پہلی منزل ہے کسی بھی استاد کے لیے کہ جس کو وہ اچیو کر لے تو اس کے بعد وہ ایک مؤثر استاد کے قالب میں اور سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کلاس میں بھی جاتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، وقت بھی گزرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن مؤثر تدریس نہیں ہو پاتی، صرف اس لیے کہ وہ اور کلاس، وہ اور طلبہ ایک پیج پہ نہیں آئے ہوئے، ان کے ذہن کے ساتھ ان کا ذہن نہیں ملا ہوا، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کو پڑھ نہیں پائے۔ تو پھر جتنا مرضی پڑھاتے رہیں، جتنا مرضی آپ وقت گزارتے رہیں ان کے ساتھ، اور دیکھنے والے کو بھی لگے کہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے اور اس کا جو زینہ ہے وہ ہے کہ کلاس کا پسندیدہ استاد بن جائے۔ ایسے طور طریقے اختیار کیے جائیں کہ ٹیچر کو کلاس، طلبہ پسند کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کا سب سے پہلا ٹول ہے لسننگ، کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو صرف ہیئر نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں کو بس سرسری سا سنیں، کوئی خاص توجہ نہ دیں، بلکہ پوری توجہ، پوری دھیان، پورے انہماک کے ساتھ ان کی بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے ایک تو آپ کو ان کی سمجھ آئے گی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا، بچے کا کانفیڈنس لیول بلند ہوگا، اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا، وہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیج ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے استاد کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، یا کسی بھی شخص جس پہ وہ جو اس کا قریبی ہے، اس سے بات چیت کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اور اپنے دل کا حال اس کو بیان کر دے، تو ایسا بچہ آگے بڑھتا ہے۔ تو کسی بھی استاد کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اسٹوڈنٹ کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم کر دے۔ اس کا اسٹوڈنٹ اس سے بات کرے تو وہ بات کو غور سے سنے۔ جب وہ اس کی بات کو غور سے سنے گا تو لا محالہ ایک کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوگا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک استاد کو ہمیشہ
हैप्पी मूड में रहना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ क्लास से बात करनी चाहिए। अगर एक उस्ताद पैसिमिस्ट है, उदास है, तस्वीर का हमेशा नेगेटिव रुख देख रहा है, तो क्या होगा, बच्चे भी उसी तरह सोचने लग जाएंगे और क्लास के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो कभी भी पैसिमिज्म के साथ, यानी एक दकियानूसी दिमाग के साथ क्लासरूम में मत जाएं, बल्कि बहुत मोटिवेटेड होके जाएं, बहुत खुले दिल और दिमाग के साथ जाएं, इम्कानात की दुनिया को अपने ऊपर रोशन करके जाएं कि इस क्लास के अंदर जो 50-60 बच्चे नहीं हैं, बल्कि 50-60 ख़ानदान बैठे हैं। 50-60 ख़ानदान नहीं हैं, बल्कि ये 50-60 ख़ानदानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने आने वाली दिनों में पूरी दुनिया में फैलकर अपना नाम कमाना है। इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएं कि वो कितने बड़े लोग और कितने हीरे बैठे हैं जिनको उस्ताद ने तराशना है, खराशना है और फिर ज़माने के लिए, माशरे के लिए उन्हें एक फ्रूटफुल और मुफीद इंसान बनाना है। तलबा के साथ केयरिंग बिहेवियर के साथ बात करें। ऐसा ना हो कि वो इनडिफरेंट बिहेवियर हो, लापरवाही के साथ बच्चों को देखे, लापरवाही का मुजाहरा करे, लापरवाही से बात करे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक उस्ताद को, एक बेहतरीन उस्ताद को केयरिंग बिहेवियर के साथ बातचीत करनी चाहिए, ना सिर्फ तदरीसी मामलात के अंदर, बल्कि स्टूडेंट के जो दीगर ज़ाती मामलात हैं उनके अंदर भी उसको बड़ा केयरिंग होना चाहिए। कोई बीमार है, किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के घरेलू पर प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक उस्ताद को देखना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को नहीं देखेगा तो बच्चे ये समझेंगे कि उस्ताद हमारी केयर नहीं करते या उस्ताद हमारी कदर नहीं करते। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तलबा के साथ हमेशा ऐसा रवैया रखें कि तलबा आपसे बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस ना करे, आप अप्रोचेबल हों। ये ना हो कि कोई भी आपसे बात करने में दिक्कत फील करे। टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लास का हर बच्चा अपने दिल की बात, अपने दिमाग के अंदर उठने वाले ख्यालात आपके साथ अगर शेयर कर लेता है तो समझे आप एक कामयाब उस्ताद हैं। इसके साथ साथ उस्ताद को जिस चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए वो है पावर ऑफ इनकरेजमेंट, कि इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई कितनी बड़ी चीज़ है। बाज़ औक़ात उस्ताद के मुंह से निकला हुआ एक हौसला अफजाई का जुमला शागिर्द के लिए पूरी ज़िंदगी का एक समझे मताए हयात बन जाता है, और उस एक जुमले के मज़े में और उस एक जुमले के को एंजॉय करते हुए वो मज़ीद काम करता है, मज़ीद आगे बढ़ता है, मज़ीद मेहनत करता है और कामयाब से कामयाब तर होता चला जाता है। उस्ताद हालांकि उस जुमले को भूल जाता है जो उसने उसको इनकरेजमेंट के लिए कहा होता है, लेकिन शागिर्द कभी नहीं भूलता। लिहाजा उस्ताद को हमेशा इनकरेजिंग बिहेवियर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। किसी ने अच्छा लिखा, इनकरेज करें। किसी ने अच्छा बोला, उसको इनकरेज करें। किसी ने कोई अच्छा छोटा सा काम किया, उसको इनकरेज करें। आप देखेंगे कि अगर आप इस इनकरेजमेंट के रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे तो बच्चे आपके करीब तर होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स को वो उस्ताद बहुत अच्छा लगता है जो उनको इनकरेज करता है। तो लिहाजा एक इनकरेजमेंट वाला बिहेवियर अपनाइए, सबको इनकरेज कीजिए, डिस्करेज ना कीजिए। वो इसलिए कि डिस्करेज करने से उनकी सलाहियतें दब जाएंगी, वो कुछ करते हुए भी नहीं करेंगे और वो डरेंगे कि हमें डिस्करेज किया जाएगा, हमें डांटा जाएगा, हमारी हौसला शिकनी की जाएगी। बल्कि आप ये देखें कि अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया है और गलती भी की है तो कुछ करने में की है, यानी कुछ करना चाहते थे तो गलती हुई है ना। अब वो जो करना चाहते थे वो एक पॉजिटिव अमल है, और गलती करना चूँकि उसके साथ मिल गया तो गलती करना भी एक पॉजिटिव अमल है, क्योंकि वो गलती से सीखेंगे। जब वो गलती से सीखेंगे तो आइंदा वो गलती नहीं करेंगे और वो अपने काम को बेहतर कर लेंगे। लिहाजा हर उस्ताद जो क्लास का फेवरेट उस्ताद बनना चाहे, जो अपने स्टूडेंट्स को तादेर याद रहना चाहता है, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करे। बच्चों के लिए हमेशा हाई एक्सपेक्टेशंस रखे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये कहे कि तुम नहीं कर सकते, तुम तो बस छोटी मोटी जॉब्स करोगे, तुम तो बस ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे। नहीं, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं, क्योंकि बच्चों की ख्वाब देखने की ये उम्र होती है और वो अपने ख्वाबों की तकमील में खूब मेहनत करते हैं और वो सोते जागते किसी एक ख्वाब की ताबीर में लग जाते हैं। तो लिहाजा उनको ये नहीं है कि उनसे जो तवक्कुआत हैं उनको महदूद करते हैं। तवक्कुआत को बहुत बड़ा करें, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं, उनको पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए निज़ाम से आशना करवाएं
और उनको उनका पुर्जा बनने की तरगीब दें कि वो कहाँ जाकर उसके अंदर एक फ़िट हो सकते हैं और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को ये मत कहें कि आप तो छोटे मोटे काम ही करोगे, नहीं, उनको बड़े बड़े कामों के लिए तैयार करें, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं और उनके अंदर वलवला और जोश पैदा करें। जब आप ये करेंगे तो वो आपको अपना महबूब बनाएंगे और आपसे बात करेंगे और आपको अपना कायद बनाएंगे, तो आप फेवरेट उस्ताद बनते चले जाएंगे। ये मत सोचिए कि कोई तालिब इल्म कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करेगा तो तब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, या क्लास कोई टॉप पोजीशन लेगी तो तब आप सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, सेलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग। स्मॉल सक्सेसेस जो हैं उनको भी सेलिब्रेट करें। किसी ने अच्छा एस्से लिखा, किसी ने अच्छी लाइन लिखी, किसी ने अच्छा पैराग्राफ लिखा, किसी ने अच्छा शेर सुनाया, किसी ने अच्छी नात पढ़ी, किसी ने अच्छा मिली नगमा सुनाया, किसी ने अच्छी तकरीर की, किसी ने अच्छी बात की, किसी ने अच्छे एटिकेट्स दिखाए, किसी ने अच्छे रवैये से आपके साथ बात की, किसी ने अच्छी नशिस्त व बर्खास्त का मुजाहरा किया, किसी ने खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। कोई टाइम पर आता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप उनको अप्रिशिएट करें और इन छोटी छोटी सक्सेसेस को एंजॉय करें और उनको भी कहें कि आप भी इन चीज़ों को एंजॉय करें। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चे, स्टूडेंट्स इन छोटी चीज़ों में मज़ीद छोटी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं और वो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें एक दिन बहुत बड़ी अच्छी चीज़ बनकर वाज़ेह होती हैं और सामने आती हैं। उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। लिहाजा एक अच्छे उस्ताद को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ तो अच्छी है लेकिन बहुत छोटी है। नहीं, बहुत छोटी है, इसको भी सेलिब्रेट करें, इस पे भी उसको कांग्रेचुलेट कहें, इस पे भी उसको वेलकम करें, इस पे भी उसकी पीठ थपथपाएं, तब वो मज़ीद अच्छा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप जब ऐसा करेंगे तो आप भी एक क्लास के फेवरेट उस्ताद बनते चले जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे टिप्स जिक्र किए हैं जिनको इस्तेमाल करके कोई भी उस्ताद, चाहे वो प्ले ग्रुप का उस्ताद है, चाहे वो नर्सरी का उस्ताद है, चाहे वो प्रेप का उस्ताद है, चाहे वो मिडिल क्लास का उस्ताद है, प्राइमरी का है, हाई स्कूल का है या यूनिवर्सिटी का है, वो उस्ताद अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट बन सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।